So hello people, my name is Ruturaj and welcome back to my channel. Today's lecture is continuation of our first lecture in Indian stratigraphy. Okay, so one lecture I have already uploaded. We have started Indian stratigraphy along with the paleontology, right? So the main focus will be on our geological time scale, right? So those who are watching my videos for the first time, please do subscribe to the channel and hit like if you like. Okay, so let us continue the series of Indian stratigraphy. Okay, first lecture, in the first lecture what we completed, we have seen what were the important events during Precambrian geologically and paleontologically. Okay, so दोनों देख रहे हैं हम, ठीक है। एक टाइम पीरियड लेना है, उसका जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है और उसका पैलेंटोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ऐसे बस आउटलाइन लेके हम 3-4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे, फिर आएंगे हम एक क्रेटॉन्स और सेडिमेंट्री बेसिन्स पे आएंगे, ठीक है। सो आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू फोकस ऑन, ओके, फॉर योर एग्जाम्स मीन्स नेट, सेट, गेट, GSI, वॉट एवर एग्जाम्स आर देयर फॉर एंड जियोलॉजी इज देयर, right? Okay, so in first lecture what we covered, we will just look. This is Precambrian, right? From here onwards, Cambrian, Ordovician, Silurian, these are periods of Paleozoic era. These three are era. Now Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic, these are era, and these are periods which belongs to these eras. Now these 6 periods, okay, 6 periods belongs to Paleozoic era. Okay, these are the subdivisions of our geological time scale. Now what we studied in the first lecture of Indian stratigraphy, I will provide the link of that first lecture. Whatever I am mentioning, first lecture, I will provide the link of that in the description box of this video. Now Precambrian, what we studied, one is Archean, then Proterozoic, and oldest was Hadean. During Hadean there was no fossil record and no rock of Hadean era or Hadean during the Hadean time period. We don't have any rock, means any geological record, and fossil record तो बात ही नहीं करनी है, fossil तो है ही नहीं. So what was the important in Archean? All the cratons which are present in the Indian subcontinent. हम दुनिया की बाद में देखेंगे, पहले इंडिया का देखेंगे, ठीक है। आर्कियंस में all the cratons which are present in the Indian subcontinents like Dharwar craton, Singhbhum craton, Bastar craton, Aravalli craton, these are cratons which contains oldest rocks or old, we consider it as oldest nucleus. Okay, nucleus of the in the stratigraphy we call it nucleus, means oldest rock we expect to find in the cratonic regions. Okay, after cratons, in Proterozoic we have all the sedimentary basins. Now which are the important sedimentary basins? सेडिमेंट्री बेसिन्स जब मैं बोलता हूँ तो 2 टाइप्स के आते हैं, एक तो स्ट्रैटिग्राफिकली पढ़ना है और दूसरे सेडिमेंट्री बेसिन्स होते हैं जो पेट्रोलियम जियोलॉजी में इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उनको कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी 1 बेसिन, कैटेगरी 2 बेसिन, कैटेगरी 3. लेकिन when I talk about sedimentary basins in stratigraphy, then I am talking about Vindhyan basin, Kadapa basin, Bhima Kaladgi basin. These 3 are important basins. There are small, there are many small basins present in the Indian subcontinents, but these are some important basins stratigraphically or geologically, we can say. Okay, and one fossil record was there in the Proterozoic period. That was very important, I told you, because origin of oxygen, means how oxygen came on earth. Like blue-green algae was there, which is the first organism which we consider as first organism on the earth surface, and that blue-green algae, that is we also call it cyanobacteria, right? Cyanobacteria produce oxygen, right? And
After the death of that cyanobacteria, one fossil record is present in our geological history during the Proterozoic period. That is, what is that? Stromatolite. Remember? So you may get this question in the exam also. So that is what is the only fossil which is present during the oldest ages, during the Precambrian or Archean Proterozoic period. Okay, that is stromatolite. Okay, stromatolites most of the times they associate with the carbonate rocks. Okay, like dolomite, limestone, like this. And in sedimentary basins, like you know all the sedimentary basins, that sedimentary rock successions of sediments we find in the Proterozoic period, right? So stromatolites we expect to find in the sedimentary basins of India which are of Proterozoic age. Okay, so this was the revision of lecture 1. Now we will start lecture 2, that is today's lecture. From Cambrian to Cretaceous we will go. Now see, Phanerozoic is a eon, Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic are era. These three are era. This is the biggest classification. Then Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic belongs to Phanerozoic eon. Then now first we will study this Paleozoic era. Okay, there are 6 periods in the Paleozoic era: Cambrian, Ordovician, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian. Now कुछ लोग बोलते हैं कि स्ट्रैटिग्राफी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, पैलिएंटोलॉजी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो फर्स्ट जो लेक्चर डाला था मैंने, इसके पहले का जो लेक्चर है, उस लेक्चर में भी, मतलब उस कमेंट में भी बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि यस स्ट्रैटिग्राफी इज़ डिफ़िकल्ट, पैलिएंटोलॉजी इज़ डिफ़िकल्ट, वी डोंट हैव एनी बायोलॉजिकल बैकग्राउंड ड्यूरिंग आवर बीएससी और ग्रेजुएशन लेवल। सो आई डोंट थिंक कि आपको बैकग्राउंड की ज़रूरत है। पैलिएंटोलॉजी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम द बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी एंड ऑल। ओके, सो यू नीड टू फोकस ऑन सम नेम्स, कुछ रट्टा मारना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें होती है रट्टा मारने के लिए, तो केमिस्ट्री में भी होती है, ऐसा थोड़ी है कि केमिस्ट्री में नहीं है। तो हाँ, कुछ चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे ये जो नाम से कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, और इतना ही याद रखना है आपको, ज़्यादा नहीं है। एक और पार्ट रहता है जो सिनोजोइक है, वो हम मे बी वी विल कंप्लीट दिस वन इन द थर्ड लेक्चर। ओके, lecture 3 is needed for this. In today's lecture we will complete this Paleozoic and Mesozoic, 2 eras. We will see what are the geologically important events, and along with these geological events, what are the paleontological events, important events which were happened during Paleozoic and Mesozoic era. Sorry, इवन बोल रहा था मैं गलती से, तो एराज है ये, ठीक है। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक, दीज आर एराज एंड दीज आर पीरियड्स। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम कैम्ब्रियन। यहाँ तक तो पता चल गया फर्स्ट लेक्चर का, तो कोई डाउट नहीं है। अगर फर्स्ट लेक्चर में भी कोई डाउट है तो इसी में कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इन कैम्ब्रियन स्टार्ट करते हैं हम कैम्ब्रियन से। जो पैलियोजोइक एरा है ना, उसमें there is no much to study about geological events in the Paleozoic era. ओके, यहाँ पे पैलियोजोइक में हमें फोकस करना है थोड़ा पैलेंटोलॉजी में ज़्यादा। यहाँ क्या था, आर्कियन प्रोटेरोजोइक में सेडिमेंट्री बेसिन्स है, फिर ऑल द क्रेटॉन्स है, वैरायटी ऑफ रॉक्स आर प्रेजेंट इन द आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। ओके, which were formed or deposited. Formed means igneous metamorphic, and deposited, when I use deposited word, that is sedimentary. Okay, that is related to sedimentary. Now in Cambrian we have to focus on one fossil record for your exams, I am telling. Okay, आपको अगर स्ट्रैटिग्राफी में PhD करनी है ऐसा कुछ, तो इतना ही फोकस करके नहीं चलेगा। मैं बस एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ कि कैम्ब्रियन इज फेमस फॉर वन फॉसिल, दैट इज ट्राइलोबाइट। This is most frequently asked questions in all the exams. Okay, which is the index fossil of Cambrian period.
ओके, दैट इज ट्राइलोबाइट। नाउ व्हाट इज इंडेक्स फॉसिल? इंडेक्स फॉसिल क्या है ये देखने के लिए आप पैलेंटोलॉजी का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। नाउ कैम्ब्रियन इज फेमस फॉर ट्राइलोबाइट फॉसिल। ये फॉसिल उस वक्त, मतलब ये जो एनिमल था उस वक्त एक्टिव था, जिंदा था, ठीक है। और ये एक्सटिंक्ट कब हो गया? देर आर 5 मेजर मास एक्सटिंक्शंस। मास एक्सटिंक्शंस का मतलब ये होता है कि ड्यू टू सम रीजंस लाइक वोल्केनिज्म, मेटेओरिक इम्पैक्ट, ड्यू टू हाई सी लेवल राइज, ये जो रीजंस है ना, ड्यू टू सम रीजंस कुछ एनिमल्स के ग्रुप्स पूरे खत्म हो जाते। जैसे डायनासोर्स खत्म हुए थे कब? क्रिटेशियस के एंड में, हम आएंगे बाद में वहाँ पे, ठीक है। उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट होना। एक्सटिंक्ट मतलब पूरा एकदम उसका स्पेसीज ही खत्म होना, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन। तो ट्राइलोबाइट का एक्सटिंक्शन यहाँ हुआ था पर्मियन के एंड में 250 मिलियन ईयर्स एगो। यहाँ पे ये जाके ख़त्म हो गए, लेकिन इनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ट्राइलोबाइट का जो है वो कैम्ब्रियन में है, और कैम्ब्रियन और ऑर्डोविसियन बोलते हैं, लेकिन बट ट्राइलोबाइट इज अ इंडेक्स फॉसिल ऑफ कैम्ब्रियन पीरियड। अगर ऑप्शंस में कैम्ब्रियन ऑर्डोविसियन दोनों है तो कैम्ब्रियन ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, ओके। नेक्स्ट इज ऑर्डोविसियन। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट you don't need to focus on geological events in the Paleozoic era। हम इसीलिए पैलेंटोलॉजिकल इवेंट्स पे फोकस कर रहे हैं कि व्हाट वाज द फर्स्ट एनिमल विच इवॉल्व्ड, विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच पीरियड, ओके। नाउ ऑर्डोविसियन में है ग्रेप्टोलाइट्स, ग्रेप्टोलाइट्स, और ये ट्राइलोबाइट्स भी बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव सिलुरियन। अब सिलुरियन में क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट इवेंट पैलेंटोलॉजिकली, ओके। जियोलॉजी, देर आर नो जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द पैलियोजोइक एरा। सिलुरियन में क्या हुआ था? फर्स्ट फिश अपीयर्ड इन सिलुरियन, ओके। ये क्या बोला है मैंने? फर्स्ट फिश, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फिश इज इन द सिलुरियन पीरियड, एंड द फिशेस वर गॉट डोमिनेटेड ड्यूरिंग द डिवोनियन पीरियड। तो इसको बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। यहां क्या बोला है मैंने? फर्स्ट फिश केम इन द सिलुरियन पीरियड, ओके। सिलुरियन के बाद आता है डिवोनियन। डिवोनियन को बोला जाता है एज ऑफ फिश, मतलब इस टाइम फिश बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो चुके थे, यहाँ पे फॉर्म हो गए, और डिवोनियन के टाइम बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गए, ठीक है। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं एज ऑफ फिशेस। नाउ कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस में और पर्मियन में, ओके, लास्ट टू, दिस आर कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। हियर वन वेरी इंपॉर्टेंट पैलेंटोलॉजिकल प्लस जियोलॉजिकल इवेंट इज देयर, ओके। इकोनॉमिक जियोलॉजिकल बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे इसके जो एनर्जी कंजम्पशन है हमारा इंडिया का, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन हम करते हैं कोल का यूज़ करके, ठीक है। तो कोल डिपॉजिट्स जो है, ठीक, हमारा कोल जो है इंडिया का बहुत ज़्यादा है। गुजरात में मिलता है, फिर मध्य प्रदेश में है, बहुत स्टेट्स है ऐसे जहाँ पे हमें कोल मिलता है, ओके। तो कोल के डिपॉजिट्स जो है वो सब कार्बोनिफेरस के हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल इवेंट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कोल और कोल डिपॉजिट्स, और वैस्क्यूलर प्लांट्स। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। वैस्क्यूलर प्लांट्स, वैस्क्यूलर प्लांट्स डोमिनेट कर चुके थे, इसीलिए तो कोल ज़्यादा है इसमें, ठीक है। कार्बोनिफेरस और पर्मियन में भी कोल मिलता है, ओके। दिस टू पीरियड्स, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन, आर इंपॉर्टेंट फॉर कोल डिपॉजिट्स all over the world, not only in India, all over the world there are plenty of coal deposits during this time, Carboniferous and Permian, okay। and इसमें भी बोला जाए तो Carboniferous में सबसे ज़्यादा मिलता है, okay। so coal vascular plants were dominant during the Carboniferous period। और एक और important चीज़ है paleontologically, that are reptiles, first appearance of reptiles, फर्स्ट, ये याद रखना, फर्स्ट रेप्टाइल केम ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस। तो कार्बोनिफेरस में क्या क्या याद रखना है आपको? कोल जो फॉर्मेशन हुआ था वो वैस्कुलर प्लांट्स का डोमिनेशन
उसी से वजह से कोल डिपॉजिट्स डोमिनेंट है ड्यूरिंग कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पैलेंटोलॉजिकली फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर्ड ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस। ओके, नाउ इन पर्मियन में क्या हुआ था, मैं बताया कि कोल हुआ था, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है पर्मियन का सेपरेट बताने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्राइलोबाइट इज इंपॉर्टेंट, सिल्यूरियन में फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फिश है, डिवोनियन को एज ऑफ फिश बोला जाता है। ये सब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जाम में आएंगे, गेट में आएंगे, सेट जो हम आपका स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और नेट में आएंगे, ठीक है। चारों एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, हर साल रिपीट हो जाते हैं, तो ये याद रखना। एज ऑफ फिश बोला गया है डिवोनियन को, देन कार्बोनिफेरस को कोल वैस्कुलर प्लांट, फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर्ड इन द कार्बोनिफेरस पीरियड, देन पर्मियन, दिस इज द लास्ट पीरियड ऑफ पैलियोजोइक एरा। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें कोल डिपॉजिट्स भी हम पाए जाते हैं, मतलब कोल डिपॉजिट बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। नाउ वी विल एंटर इनटू मेसोजोइक एरा। ओके, नाउ पैलियोजोइक इज ओवर, now we are going to enter mesozoic era, that is first period of mesozoic era is triassic। okay, तो यहाँ तक कोल मिलते हैं हमें, लोअर क्रिटेशियस तक कोल मिलता है। कोल का जो है ये इतना बोल सकते हैं हम, यहाँ पे कोल मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बोनिफेरस में मिलते हैं, बताया जैसे मैंने, ठीक है। नाउ मेसोजोइक एरा इज स्टार्टिंग फ्रॉम 250 मिलियन ईयर्स अप टू 65 मिलियन ईयर्स। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रायसिक जो है, ट्रायसिक में फर्स्ट डायनासोर अपीयर्ड हुआ था, ठीक है। लेकिन इनका डोमिनेंट कब हुआ था डायनासोर का, जुरासिक में। सो पैलेंटोलॉजिकली ट्रायसिक एंड जुरासिक इज फेमस फॉर डायनासोर्स। Okay, all the dinosaurs fossils we get in the Gujarat or Kutch region, those are from Triassic and Jurassic region. Age, okay, age means periods. Triassic and Jurassic is famous for dinosaurs, appearance of dinosaurs. Okay, now Jurassic में एक और चीज़ हुई थी, फर्स्ट बर्ड अपीयर हुआ था। देखिए, फर्स्ट फिश कब अपीयर हुआ है, सिल्यूरियन में। फर्स्ट रेप्टाइल कब अपीयर हुआ है, कार्बोनिफेरस में। फर्स्ट बर्ड कब आ गया, जुरासिक में। ओके, व्हाट इज द जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इवेंट विच वाज हैपन ड्यूरिंग द जुरासिक इन इंडिया। ओके, दुनिया की बाद में देखेंगे हम। इन इंडिया में जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इवेंट ये हुआ था कि सी लेवल जो है, ओके, मीन सी लेवल जो बोलते हैं हम, मीन सी लेवल का राइज हुआ था ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। अब मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हुआ मतलब पोलर आइस का मेल्टिंग होने के बाद क्या होता है, मरीन ट्रांसग्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। सपोज दिस इज लैंड एंड दिस इज सी लेवल। ओके, कंसिडर दिस एज सी लेवल। नाउ अगर पोलर आइस मेल्ट हो गया तो ये सी लेवल राइज हो जाएगा। अब यहाँ तक जो डिपॉजिट कर रहे थे सेडिमेंट्री बेसिन्स, ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ तक डिपॉजिट कर रहे थे, क्योंकि सी वाटर इज द बेस्ट एकोमोडेशन स्पेस टू डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। नाउ सी लेवल हैज राइज। अब सी लेवल का राइज हो गया, सी लेवल राइज हो गया कब, ड्यूरिंग जुरासिक में सी लेवल राइज हो गया, तो यहाँ पे जो डिपोजिशन होता था अब यहाँ तक होने लगा, ठीक है। अब इसको बोलते हैं मरीन ट्रांसग्रेशन डिपॉजिट्स, ठीक है। दिस इज जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इवेंट, मरीन ट्रांसग्रेशन, मतलब सी लेवल का ट्रांसग्रेशन होना लैंड पे, और अगर सी लेवल कम हो गया तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन, ठीक है। ये ट्रांसग्रेशन हुआ था, ट्रांसग्रेशन के कारण डिपॉजिट्स जो बने वो जुरासिक एज के हैं, ठीक है। तो इसी रॉक्स में हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं, क्योंकि डायनासोर्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग जुरासिक। देखा है ना जुरासिक पार्क, इसी से नाम पड़ा है वो मूवी का, जुरासिक पार्क। ओके, सो जुरासिक में क्या था, डायनासोर्स थे। फर्स्ट बर्ड अपीयर्ड ड्यूरिंग जुरासिक
एंड मरीन ट्रांसग्रेशंस। अब मरीन ट्रांसग्रेशंस के जो डिपॉजिट है वो सबसे ज़्यादा मिलते हैं गुजरात में, ये याद रखना। अब इसका डिटेल में जो स्टडी है स्ट्रैटिग्राफिकल स्टडी, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल गो टू क्रिटेशियस विच इज लास्ट पीरियड ऑफ मेसोजोइक एरा। ओके, क्रिटेशियस में अभी क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, ये जो डायनासोर्स थे वो क्रिटेशियस के एंड में 65 मिलियन ईयर्स एगो एक मेटियोरिक इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है, अर्थ पे, और उस कारण ऑल द डायनासोर्स वर गॉट एक्सटिंक्टेड ड्यूरिंग 65 मिलियन ईयर्स एगो। इसको भी मास एक्सटिंक्शन बोलते हैं, ठीक है। 5 मास एक्सटिंक्शन जो है अर्थ की हिस्ट्री में 5 बार हुआ है, ठीक है। वो कब कब हुआ था ये बाद में बताते हैं। मास एक्सटिंक्शन पे सेपरेट लेक्चर लेंगे हम एक, ओके, इसी सीरीज में लेंगे, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू दिस पैलेंटोलॉजी एंड स्ट्रैटिग्राफी। नाउ क्रिटेशियस में जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ था क्रिटेशियस में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ क्रिटेशियस में हुआ था। बता सकता है कोई एंड ऑफ द क्रिटेशियस? वो था डेक्कन वोल्केनिज्म। डेक्कन ट्रैप जो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गुजरात, 4 स्टेट में जो है वो डेक्कन ट्रैप बेसॉल्ट मिलते हैं हमें। और वो जो डेक्कन ट्रैप वोल्केनिज्म हुआ था वो 65 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था, मतलब अपर क्रिटेशियस बोलते हैं हम उसको, ठीक है। पूरा क्रिटेशियस का एज तो अलग ही है, अलग है मतलब, तो अपर क्रिटेशियस बोलते हैं हम इसको, अपर क्रिटेशियस में कंसिडर करते हैं उसको। जो एज ऑफ द डेक्कन ट्रैप है वो अपर क्रिटेशियस है, ठीक है। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, जियोलॉजिकल एंड पैलेंटोलॉजिकल इवेंट्स विच वर हैपन ड्यूरिंग द पैलियोजोइक एंड मेसोजोइक एरा, ठीक है। और ये पीरियड्स के नाम याद रखना, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ये है, दीज बिलोंग्स टू पैलियोजोइक एरा। ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस बिलोंग्स टू मेसोजोइक एरा। ओके, सो ये कुछ चीज़ें याद रखना। उसके बाद दीज आर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स विच मीन्स बोथ स्ट्रैटिग्राफी जियोलॉजिकली एंड पैलिएंटोलॉजिकली। So I think you must have understood why I'm teaching simultaneously geology and paleontology, okay, in stratigraphy, Indian stratigraphy. क्वेश्चंस कैसे भी आ सकते हैं, कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लो, गेट के और जैम के देख लो, ठीक है। गेट एंड जैम फोकस मोर ऑन स्ट्रैटिग्राफी एंड पैलेंटोलॉजी, स्पेशली पैलेंटोलॉजी, ओके। एंड नेट में तो आता है, नेट में इस पर ज़्यादा फोकस नहीं रहता है। कोर जियोलॉजी के क्वेश्चंस नेट में ज़्यादा रहते हैं। फिर ओशन एंड एटमॉस्फेयर इज़ देयर इन नेट एग्ज़ाम, ओके। सो any doubt in this today's lecture, please do ask in the comment box down, okay. So that's it for today, and in next lecture we will go for Cenozoic era, and then we will start from the Dharwar Craton of Archean age, okay. Stay connected and watch my other videos also, and please do comment if you don't understand anything from any of my previous videos. Bye bye, take care, thank you.